आज के सेशन के लिए मैं इतने आपको हाइपर दिख रही हूँ, इतने एक्साइटेड दिख रही हूँ। इसका रीजन है दैट वी हैव सदानंद गोगोई जी विद अस। सदानंद गोगोई जी, मैं आप ही से जानना चाहती हूँ आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन। तो सदानंद जी हमें बताएंगे कि उनको कौन से टाइटल्स मिले हैं और वो कब से वर्कआउट कर रहे हैं, क्या क्या उनके बारे में वो बताना चाहते हैं, वो सारी चीजें। सो हेलो सदानंद जी, हाउ आर यू डूइंग टुडे? I'm fine, thank you very much for inviting me to the Kyle group. Uh, I I have started bodybuilding, uh, competitive bodybuilding quite lately. During my college days, I was into athletics. I I love jogging, running, all those competitive running like 800, 1500, 5000, 10,000. I used to represent my college in the inter university. Then slowly I switched to uh, bodybuilding, and हम्म। it was in 73, 74. I won my first bodybuilding championship. ओह माय गॉड। Then that was a local district competition, हम्म। and then I uh, came to Calcutta to train myself under Mr. Monotus Roy, Mr. Universe. हम्म। Uh, he's no वाह। more now. He was the father of Indian bodybuilding. And then I own my state. I'm from Assam, so I own Mr. Assam 1977. Then I own Mr. Guwahati University in 73, 74. Then I own in Calcutta one championship. Then I came to Mumbai, and that is the first thing that I from Mumbai. I used to take part in the Mr. Mumbai Masters. I own Mr. Bombay that time, Mr. Bombay Masters 9 times, and then Mr. Maharashtra 9 times, ओह then माय। Mr. Western India. That is a 5 state like Goa, Rajasthan, all this, my MP and Maharashtra like that. So that is I own 4 times, and I own Mr. India 5 times, Mr. India Masters 5 times. Then हाँ। I have represented India in Mr. Asia Masters 4 times in Vietnam, Taiwan, Hong Kong, and Korea. And also I have represented India in World Championship in Barcelona, Spain in 1998. What? So yeah, then this is bodybuilding. How I got all this achievement. Now my present age is 78, and still I do bodybuilding for the reason that normally elders give up early. They don't do any physical activity. As because I was into bodybuilding, so I thought that let me see how long one can go. What is the human body's potential? Whether you can maintain the muscle, same muscle mass, and whether you can achieve that six pack. I'm planning to get that six pack, and I want to in the at the age of 78 now. So in 80, when I'll be 80, I'll present myself in some major bodybuilding championship. That is my dream. वाह। So that is how that is my introduction from bodybuilding point of view. दिस इज वंडरफुल सदानंद जी, जो अपनी बेसिक आपकी इंट्रोडक्शन थी कि आपने इंडिया के स्टेट्स के टाइटल्स तो जीते ही थे, पर आपने इंटरनेशनली भी इंडिया को काफी बार रिप्रेजेंट किया है, स्पेन में, वियतनाम में और भी कई सारी जगहों पे। दिस इज वंडरफुल। अच्छा, मैं आप सभी के लिए एक छोटा सा एक वीडियो दिखाना चाहूंगी सदानंद जी का, ताकि आपको पता चले कि वो कैसे करते हैं। और कुछ हम ऑफ कोर्स क्वेश्चंस पूछेंगे उनसे, हम सारे उनके सीक्रेट्स जान लेंगे। और उसके बाद मैं हमारे मेंबर्स के पास भी आने वाली हूँ, अगर उनके कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज है, तो हम उन्हें जरूर लेंगे। सो रमेश के ऋषि, आप Okay. थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आपके पास आ ही रही हूँ। गिव मी जस्ट 1 मिनट। और ये है हमारे सदानंद जी एट द एज ऑफ 78। एज यू कैन सी, 78 के एज में भी आपने इतनी अमेजिंग फिजिक और मसल मास मेंटेन किया है। क्योंकि हमें यूजुअली लगता है कि जैसे एज होता है वैसे हमारी ताकत कम हो जाती है, जो कि सही भी है। पर अगर आप मेहनत करो, अगर आप खुद को उतना
क्या कह सकते हैं, उतना मसल्स को अपने ट्रेन करो तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। सदानंद जी, ये डंबल मुझे नहीं लगता है मैं अपनी जिंदगी में उठा पाऊंगी। 30 किलो का डंबल उठा रहे हो। 10 किलो का डंबल अगर मैंने उठाया तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने कौन सा पहाड़ खोद लिया है। 30 kg इज अनदर लेवल। तो ये भी एक सदानंद जी का फोटो है। आई जस्ट जूम इन अ लिटिल बिट। सुपर सदानंद जी। ओके, तो एक बेसिक सा हमने कुछ 2-3 फोटोज और 1-2 वीडियोस हमने देख लिए सदानंद जी के। नाउ आई आस्क सदानंद जी सम क्वेश्चंस जो हमने उनसे पूछे थे और जो मैंने कुछ निकाले थे। सो गिव मी जस्ट 1 मिनट। कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे वो बस देखना है, बहुत सारे क्वेश्चंस है मेरे दिमाग में। ओके, तो सदानंद जी, पहला क्वेश्चन मेरा है कि आपको कौन सी चीज ने इंस्पायर किया बॉडी बिल्डिंग करने के लिए और अपने फिजिक को मेंटेन करने के लिए? Uh, college days, uh, you do lot of activities. In fact, since I am from Northeast हाँ। Assam, and in our state, football is the most popular game. हम्म। And I born and brought up in Tea Garden, अच्छा। and in front of our house there is a big football ground. अच्छा, So, सदानंद जी, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट। आप थोड़ा सा हिंदी में भी बात कीजिएगा प्लीज, तो वो अच्छा, ज्यादा। हाँ। मैं हाँ। एक्चुअली असम की टी गार्डन में पाला बड़ा हूँ। मैं हाँ। पैदा ही हुआ था। तो हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ा फुटबॉल ग्राउंड था। ओके। तो हम लोग मोस्टली हम स्कूल से आने का बाद और जैसे मोस्टली हम लोग वहाँ पे ही ज्यादातर फुटबॉल। तो वेरी मच वी डू ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटी। फुटबॉल, कभी फुटबॉल खेला, कभी एथलेटिक्स। तो दैट इज हाउ वी आर मोर फिजिकल। तो हम्म। बॉडी बिल्डिंग में, क्योंकि उन दिनों में क्या है, हम लोग माइथोलॉजिकल कुछ कैरेक्टर थी, मूवीज में दिखाई देता था, हनुमान, भीम। तो हम लोग का एनर्जी लेवल इतना हाई था। तो फिजिकल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा हम। तो दैट इज हाउ आई गॉट इंस्पायर्ड कि अ, हनुमान का जैसा, भीम का जैसा, फ्रॉम माई जो वो माइथोलॉजिकल जो कैरेक्टर, वो इंस्पायर किए इनिशियली। उसके बाद फिर कॉलेज में एक दूसरे को देख के, हॉस्टल्स में जब रहते थे तो एक दूसरे को। तो कॉलेज में मैं एथलेटिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड था, क्योंकि जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, 800, 1500, 5000, 10,000, और यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया था। उस समय फिजिकल एक्सरसाइज किया था, लेकिन कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग के लिए तो सही है, उस टाइप का एक्सरसाइज नहीं था। क्योंकि ट्रेनर भी नहीं था। और हम्म। 60 years बैक, यू कैन इमेजिन, मैं ग्रेजुएशन किया 69 में, और इट इज ऑलमोस्ट 60 years आई गेस। तो उस समय ऐसा कोई फैसिलिटीज नहीं था, बिकॉज असम तो ऐसे भी छोटा सा स्टेट है। तो फिर वहाँ पे बॉडी बिल्डिंग जब हम फिजिकल नॉर्मल बेसिक एक्सरसाइज करते करते, somebody noticed me, देन मुझे गाइड किया कि तुम लोकल डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करो। और लकीली आई आई वोन दैट चैंपियनशिप। तो उसके बाद क्या हुआ, पहली बार आपको जब ऑडिटोरियम से इतने लोगों की क्लैपिंग्स और वाहवाही मिलते हैं, वो एक जादू की जैसा होता है। जैसे मतलब जैसे मैं कुछ कुछ ऐसा कुछ पा लिया, और वो उसी से मोटिवेशन, दैट इज अ मोटिवेशन पॉइंट, वहीं से शुरू हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे काफी सारे दोस्त मिलते गए, और दैट इज हाउ ऑल बिगिन बॉडी बिल्डिंग। हम्म। वाओ, वंडरफुल स्टोरी। तो काफी रॉ था, मतलब आपने पहले फुटबॉल आप खेलते थे, तब से आपको आपके फिजिकल एक्टिविटी में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर आपको किसी ने नोटिस किया एंड देन यू वेंट टू द चैंपियनशिप, और अब जीते भी काफी सारे चैंपियनशिप्स, राइट? लवली, लवली। ओके, तो जैसे अभी आपकी एज 78 है और हम आपका फिजिक देख ही पा रहे हैं, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने थोड़ी सी मॉडिफाई की आपके वर्कआउट में? आपने क्या चीजें बदली, कौन सी चीजें इंप्रूव की, कौन सी चीजें कम की, जैसे आपका एज बढ़ता गया?
मैं डाइट पे ध्यान दिया। हाँ। पहले जैसे डाइट को थोड़ा रेस्ट्रिक्शन किया, कट डाउन, कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा कम किया, और शुगरी प्रोडक्ट्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मैंने टोटली अवॉइड किया। बट जिम में इंटेंसिटी, एक्सरसाइज का वर्कलोड, वेट्स वेट्स जैसे कंपटीशन में, जब से कंपटीशन के लिए जब तैयार किया था, तब जो वेट लिफ्ट करता था वो कम कर दिया। इंटेंसिटी लेकिन वैसा ही रहा, इंटेंसिटी सेम, इंटेंसिटी में कोई कम नहीं हुआ। हम्म। और जैसे जैसे यू 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 एक्सपीरियंस, मतलब जो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाई देता है, क्योंकि जिम में तो मिरर होता है ना, और हम्म। मिरर में आप जब देखते हो, आप तो खुद को इंस्पायर हो जाते हो। उसके लिए किसी को कोई बोलने की जरूरत नहीं है। और तो मैंने देखा कि माइंड इज द बिगेस्ट फैक्टर फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आपको माइंड को अगर आप गाइड करो, हम्म। तो और वो माइंड को आपको, ये चीजें आयरन गेम है। आयरन गेम क्या है ना, ये थोड़ा सा डल है, डल इन द सेंस, इसमें कोई, यू हैव टू, आपको पेन ही करना है। वेट लिफ्टिंग जब करते हो तो यू हैव टू गेट गेन पेन, बट नो पेन नो गेन। और तो उसको, वो जो मोटिवेटिंग फैक्टर है, सेल्फ मोटिवेशन ऑटोमेटिक आता है। एक बार आपने उस सेल्फ मोटिवेशन का चाबी अपना दिमाग में घुमा लिया, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप टाइम पे जिम जाओगी, टाइम पे जिम करोगी, और खान पान में भी आपका ऑटोमेटिकली कंट्रोल आ जाता है। तो यहाँ पे माइंड और सबसे बड़ी फैक्टर है। वाह। माइंड, जैसे आपने कहा डाइट पे आपने कंट्रोल किया, पर क्या आप उतना ही वेट अभी भी लिफ्ट करते हो जितना आप आपके प्राइम में लिफ्ट किया करते थे, मतलब नहीं, आपके ट्वेंटीज? हाँ। उतना वेट मैं लिफ्ट नहीं करता हूँ। मैं वेट कुछ एक्सरसाइज में मीडियम हैवी करता हूँ, कुछ एक्सरसाइज में लोअर लोअर बॉडी पार्ट जैसे मैं करता हूँ लेग्स वगैरह के लिए, तब मैं अच्छा। हैवी करता हूँ। लेकिन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर जॉइंट्स ऑल्सो। हम्म। जैसे जैसे आपका एज होता है, तो मतलब ये है ना, यू हैव टू डू स्मार्ट ट्रेनिंग। यू आपको बॉडी हमेशा बोलते हैं, आपका एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको हमेशा गाइड करते हैं कि इतना ही करना है, इससे ओवर ट्रेनिंग नहीं करने का है। और लेकिन इंटेंसिटी अगर रहता है, अगर आपका इंटेंसिटी है, मतलब इंटेंसिटी इन द सेंस, अभी क्या है, जिम में बहुत सारे लोग ऐसे भी जाता है, सोशल कॉन्टेक्ट, वहां पे ज्यादातर मैं देखता हूँ कि गप्पे लड़ाते रहता है। तो खैर, मेरा मैं जब वर्कआउट करता हूँ, तो कोई ना मेरे पास आता है ना मैं किसी के पास जाता हूँ। तो आ, तो वो एक्चुअली मैंने देखा कि दैट इज अनदर बिग फैक्टर, अगर आपको रिजल्ट लेना है। और मैं रिजल्ट देख रहा हूँ, मेरे खुद में मैं देख रहा हूँ वो रिजल्ट। वाह। करेक्ट। गप्पे नहीं मारने चाहिए जिम में, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। जी भी सीखना चाहिए। बट वंडरफुल वंडरफुल सदानंद जी। ओके। कोई ऐसे स्पेसिफिक टेक्निक्स आप रेकमेंड करोगे हमारे बाकी के एल्डर्स को, जो कि अभी इतना ज्यादा वर्कआउट नहीं करते हैं जितना कि आप करते हैं ऑब्वियसली, पर जो थोड़े से एक्टिव हैं, जो वॉकिंग करते हैं, जो थोड़ा सा योगा कर लेते हैं, तो उन्होंने अभी उनके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, उनके मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए, जॉइंट्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चीजें वो कर सकते हैं? कुछ स्ट्रेचिंग वर्कआउट है, योगा का भी काफी सारे स्ट्रेचिंग है। जो फिजिकली एक्टिव है, वॉकिंग तो कर ही सकते हैं हर कोई मेरे ख्याल से। और वॉकिंग का तो बेनिफिट है, एक तो कार्डियो का, आपका हार्ट मसल, यू नो, जैसे ही एज ए ग्रो, तो आपका कार्डियो की जरूरत होता ही है। तो कार्डियो में वॉकिंग भी आता है, साइकिलिंग भी आता है, स्विमिंग भी आता है। तो हम्म। आपका खुद के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द फैसिलिटीज अवेलेबल अराउंड यू। और योगा और मेडिटेशन, ये दोनों चीज को अगर इंक्लूड कर सकते हैं, तो दैट इज
that will be best because yoga always helps to gain your inner health. हम लोग जितना मसल अपना बाहरी मसल देखते हैं, एक्सटीरियर मसल लाइक बाइसेप ट्राइसेप, उतना ही इनर बॉडी में भी मसल्स है। और उसको जैसे हेल्दी करते हैं आप, अगर उसके साथ डाइट का भी कंट्रोल करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली ये मोटिवेशन फैक्टर में इनर हेल्थ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हम्म। तो दैट इज मेरे ख्याल से, और कुछ फिजिकल फ्री हैंड एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर हाँ। वेट से। जो लोग वेट कर सकते हैं, वेट लाइट वेट लेके वेट करें। हम्म। क्योंकि मैं ऑलवेज रिकमेंड करूँ वेट ट्रेनिंग। हम्म। वेट ट्रेनिंग के जरिए जो मसल्स बनते हैं, तो उसका एक अलग टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और खुद खुद जब आप ट्रांसफॉर्मेशन देखते हो ना, तो फिर उसका एक काइंड ऑफ जॉय, जॉय ऑफ फिटनेस, जॉय ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, करेक्ट। उसकी कोई तुलना नहीं है। और वो पाना जरूरी है, किसी को ये कंटिन्यू करना है ना, कंटिन्यू करना। और ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये नहीं कि आपने कुछ दिन किया, और ये कोई कोर्स नहीं है, 1 महीना किया, 2 महीना किया। ये लाइफ लॉन्ग, एवरी डे, मे बी 3 डेज ए वीक और 5 डेज ए वीक आप कर सकते हैं। करेक्ट। हाँ, तो वन मस्ट डू इट टू एक्सपीरियंस इट। हम्म। एक्चुअली ये मैं किताबी बातें तो बहुत सारे हो जाता है, लेकिन जब तक वो इंडिविजुअल नहीं करेगा। लेकिन हम्म। एट द एंड ऑफ द डे सजेशन ये है, सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आप भले कुछ स्क्वाटिंग, फ्री स्क्वाटिंग कर सकते हैं, और हम्म। पुश अप कर सकते हैं, और आपका वॉकिंग, स्विमिंग, जो भी आपको पसंद है कर सकते कर सकते हैं। बढ़िया। तो सदानंद जी, क्या जो सीनियर्स है, जैसे मेरी मम्मी को भी 2 kgs के डंबल दिए, मतलब 2 kg 2 kg सिर्फ, तो क्या ऐसे कम वेट से वो स्टार्ट कर सकते हैं अभी वर्कआउट करना? कुछ उससे हार्म तो नहीं होगा? हैं। नहीं, कुछ हार्म नहीं होगा। और जिम में नॉर्मली अगर आपको अच्छा जिम में जाएंगे तो ट्रेनर तो रहता ही है। हाँ। उनकी गाइडेंस है, क्योंकि पहले अगर कभी भी जिम नहीं किया तो उनके लिए तो टोटली अननोन टेरिटरी होगा। तो हम्म। वो तो ट्रेनर मोस्टली फ्री हैंड एक्सरसाइज ही करवाते हैं, और धीरे धीरे उनको एनकरेज करते हैं। तो लाइट वेट ही करने का, हम्म। 1 kg। इवन लेडीज को मैंने देखा है, काफी एल्डरली लेडीज, वो तो ½ kg डम्बल से भी करते हैं। तो सो लिटिल वेट इज इम्पोर्टेंट, अगर आपको वर्कआउट अच्छे से करना है और मसल में एक्चुअली आपको फर्क देखना है तो थोड़ा सा वेट चाहिए वर्कआउट करते हुए, है ना? वेट वेट ट्रेनिंग से क्या होता है, मसल मास मेंटेन होता है। और मसल मास जैसे मेंटेन होते हैं, आपका बहुत सारे चेंजेस आता है। हम्म। योर हार्मोनल लेवल आल्सो गेट चेंज। यू या। नो दैट मसल बिल्डअप होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से। और आप जैसे ही आपका वेट ट्रेनिंग से जो लीन बॉडी मास बनता है, हम्म। लीन बॉडी मास, तो आपको लीन बॉडी मास विल हेल्प to burn the fats, calories, you know, they call resting metabolism. आप कुछ जिम नहीं कर रहे हो, अभी जैसे आप बैठे हो, मैं बैठा हूँ, अभी हमारा वर्कआउट का, उसके कारण हमारा जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म जो है ना, वो हमारा एफिशिएंसी में चला जाता है। तो उससे भी फैट बर्न होता है। तो दिस इज अनदर बेनिफिट। हम्म। ओके। ओके। लवली सदानंद जी। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप हमारे साथ अपने थोड़े से डाइट और न्यूट्रिशन के सीक्रेट्स शेयर कर सकते हो कि आपने किस तरह से क्या क्या मेंटेन किया, और करंटली राइट नाउ एट द एज ऑफ 78 आप किस तरह का डाइट ले रहे हो जो आपके मसल्स को और आपके इन जनरल हेल्थ को इतना अच्छे से मेंटेन करके रख रहे हैं? प्रोटीन इज ए मस्ट। हम्म। ओके। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन तो सही है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और थोड़ा सा फैट्स। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स। लेकिन जो सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, अभी जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको वेजिटेरियन प्रोटीन लेना पड़ेगा। और उसका
क्वांटिटी डिपेंड करता है कि आपका बॉडी वेट क्या है। बॉडी वेट के हिसाब से आपको एटलीस्ट 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, जैसे अभी मान लीजिए आपका बॉडी वेट अगर 60 kg है, तो 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना सही है। और प्रोटीन को क्या है, अलग अलग जैसे अभी 5 मील्स में डिवाइड करने का है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, उसके बाद लंच में, इवनिंग स्नैक्स में। तो ऐसा करके आपका थ्रू आउट द डे यू शुड गेट दैट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। और मैं तो नॉन वेज हूँ, इसीलिए हम लोग का नॉन वेज वाले का प्रॉब्लम नहीं होता है, बिकॉज फिश एंड चिकन मीट यू गेट एनिमल बेस्ड प्रोटीन। वेजिटेरियन लोगों के लिए जैसे अलग अलग beans, all those things there. So right now I have cut down carbohydrate. मैं कार्बोहाइड्रेट अभी कट डाउन किया। और प्रोटीन में हम लोग ज्यादातर फिश लेते हैं। ओके, तो मैं दही, आई एम फॉन्ड ऑफ कार्ड। दही दही जो है ना, वो दैट इज वेरी गुड। सही और सर। मॉर्निंग में मैं सबको सजेस्ट करूंगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, इंक्लूडिंग यू, हॉट वाटर, हॉट वाटर। टूथब्रश करने से पहले आपको 2 कप, बड़ा कप में, और थोड़ा सा हल्दी मिक्स कर लेने का है, और गर्म पानी में, और उसको पीने का है कम से कम। और थ्रू आउट द डे ट्राई करने का है कि आप गुनगुना गर्म पानी पियो। दैट इज वेरी गुड। बाकी मेरा राइट नाउ आई हैव कट डाउन माय कार्बोहाइड्रेट। दैट इज हाउ आई रिड्यूस। मैं 91 से अब 84 में आ गया। अच्छा, ओके, सॉरी मेरा कैमरा बंद हो गया। बट आपने जो बोला गर्म पानी में हल्दी डाल के पीना है, तो उससे भी मतलब वेट मैनेजमेंट में, या फिर थोड़ा सा क्या कह सकते हैं उसको, हमारे आपका फिजिक को सिस्टम, मेंटेन हाँ, करने में। हमारा आपका हाँ, इनर सिस्टम जो है ना, हमारा जो टॉक्सिन्स अंदर में रहता है, डिटॉक्सिंग। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये अच्छी है। हल्दी हल्दी अगर अच्छा है तो ऑर्गेनिक हल्दी मिले तो ज्यादा अच्छा है। चुटकी भर हल्दी, चुटकी भर हल्दी एक बड़ा कप में गर्म पानी में मिक्स करके पीने का है। और अगर थोड़ा सा जेगरी, गुड़ गुड़ बोलते हैं ना, जेगरी, थोड़ा सा एक टुकड़ा, वो भी ले सकते हैं चाटनी। अगर डायबिटीज का अगर इशू नहीं है तो। आ, ये जनरल है। आपका इनर जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। और थ्रू आउट द डे कोशिश करने का है कि हम्म, गुनगुना गर्म पानी पिए। और कोल्ड ड्रिंक्स तो अवॉइड ही करना चाहिए, अनटिल अनलेस देयर इज ऐसा कोई लोकेशन में है कि कुछ है नहीं, तो कोल्ड ड्रिंक्स ये पीना ही पीना है, तो फिर ठीक है। अदरवाइज बाकी सप्लीमेंट्स तो अभी मैं बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट तो मैं नहीं लेता हूँ हाँ, एक्स्ट्रा। और क्योंकि मैं अपना नेचुरल फूड से ही मेरे को सफिशिएंट मिल जाता है। लेकिन जब कंपटीशन करता था तब एक्स्ट्रा प्रोटीन लेता था। और एग व्हाइट अगर अभी हम लेते थे, एग व्हाइट, एग तो उन दिनों में बहुत हम लेते थे। अभी तो 2 eggs एनफ। उस समय तो 24 eggs हम लेते थे जब कंपटीशन करते थे, बिकॉज एग व्हाइट इज द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो एज यू ग्रो ओल्ड, इंटेक जो है ना, कैलोरी इंटेक हाँ। कम हो जाना चाहिए। ओके, ओके, गॉट इट। तो जैसे आपने अभी इसके बारे में टिप्स दिए, तो मैं एक क्वेश्चन था जो मुझे पूछने का रह गया था लास्ट क्वेश्चन में, कि मोर वेट और मोर रिपीटेशंस फ्रॉम लिटिल वेट, व्हाट विल हेल्प द बेस्ट फॉर सीनियर्स? कि ज्यादा वेट करना चाहिए या ज्यादा रिपीटेशंस मारने हैं कम वेट से? कम वेट से रिपीटेशन फॉर द एल्डर्स। मोर क्योंकि रिपीटेशंस। हाँ, अभी जैसे मेरे को मसल मास की साइज करने की जरूरत नहीं है, मेरे को डिफाइन होना चाहिए। और इंटेंसिटी तभी होगा जब रिपीटेशन, मोर रिपीटेशन। हम्म। हैवी में एक तो रिस्क है, रिस्क ऑफ इंजरी है। और कोई जरूरत नहीं है क्या करने का है एल्डर्स को वेट उठा के, है ना। रिपीटेशन इज मोर, रिपीटेशन इज ऑलवेज बेटर। मोर मीडियम वेट, रिपीटेशन। मोर रिपीटेशन। हाँ,
एंड प्रोटीन मिक्स तो कीजिए, जैसे आपने कहा कि प्रोटीन खाना चाहिए, वेज में काफी कम ऑप्शन है पर ऑप्शन है, तो आप पनीर ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, जैसे हाँ, वेजिटेरियन में पनीर, टोफू, हाँ मिल्क मिल्क स्किम मिल्क, मिल्क, करेक्ट, हाँ, दही, दही, हाँ बहुत है बहुत है। सोया 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 का भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। सोया भी अच्छा है, दैट्स करेक्ट, थैंक यू। हम्म। अच्छा, जैसे अभी ये तो हमने कर लिया, हमने डिसाइड कर लिया कि अभी हम अच्छे से वर्कआउट करेंगे, कल से अच्छे से डाइट मेंटेन करेंगे, हम इंस्पायर हो गए। पर फिर क्या होता है, डिसिप्लिन नहीं रहता है, हम 8 दिन करते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा सा ढीला पड़ना शुरू हो जाता है कि नहीं ठीक है ना, एक एक 2 दिन रेस्ट ले लेते हैं, फिर कुछ वो दिन के फिर कुछ वीक्स में बदल जाता है, वीक्स कुछ महीनों में बदल जाते हैं। तो आप आपके खुद के जर्नी में आपने ये डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया, आपके मेंटल हेल्थ पे इस डिसिप्लिन का और आपके वर्कआउट का क्या इफेक्ट हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, और इन जनरल आप डिसिप्लिन या फिर डिटर्मिनेशन को कैसे देखते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्कआउट एंड हेल्थ? ये 3 Ds, 3 D मैं हमेशा बोलता हूँ, 3 D बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो डिजायर, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। अब पहले तो आपको खुद को इच्छा होना पड़ेगा ये फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, है ना। इच्छा नहीं होने से, आपको इच्छा इतना होना पड़ेगा, फिर आप उस इच्छा के लिए जैसे क्या करने का है, हम्म आपको फिजिकल वर्कआउट करने का है, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम में आप उसको करोगे, दैट इज अ डिसिप्लिन। और जैसे ही आपका रिजल्ट आना शुरू होगा, आप में आप मेंटल हेल्थ में आपको ज्यादा एंथुसियाज्म या आपको अच्छा लगेगा, तो डेडिकेटेडली आप फॉलो करोगे। सो दैट इज डिजायर, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ये 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, क्योंकि मुझे तो डीप फोकस होने का कोई चांस ही नहीं होता है मेरा। I enjoy doing bodybuilding. I love to talk about bodybuilding. और हम्म दूसरा, कोई अगर मेरे से पूछते हैं तो मैं मेरी बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी जो भी मेरे से हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द, जो जो भी मेरे को सवाल कर रहे हैं उनका फिटनेस लेवल देख के मैं सलाह देने के लिए खूब तत्पर रहता हूँ। और दूसरा, मेरा पर्सनल जो है, एक मेरा इट इज अ पर्सनल ओपिनियन, स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज आप अगर मेडिटेशन करोगे, हम्म मेडिटेशन मैं लगभग 4:30 5 o'clock में बिस्तर से मेरा मैं उठ जाता हूँ। वाह, और जिसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, और उस समय मेडिटेशन करने से आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो फिर क्या है, और वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अननोइंगली अननोइंगली मेरा एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो डेवलप होता है, जो मैं जिम में महसूस करता हूँ वर्कआउट में, दिस इज अ न्यू थिंग मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। यू नो, आई डोंट गेट टायर्ड इवन। मैं तो 2 घंटा 2 hours एवरी डे आई डू वर्कआउट। वो यंगस्टर लोग जो आते हैं, वो लोग कब आया कब गया मालूम नहीं पड़ता है। मेरे को खाली यस, बोलते हैं सर आप करो। तो आई अंडरस्टैंड, हाँ। तो क्या है, मेरे को अपना रूटीन पूरा करना ही है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये मेरा जो माइंड फैक्टर है, ये कहाँ से स्ट्रेंथ कहाँ से आता है। तो शायद ये दैट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ व्हिच कीप्स मी गोइंग, ओके। और मैं कनेक्ट करता हूँ, एंड ऑल्सो आई ऑलवेज थैंक गॉड हम्म फॉर हिज ग्लोरी, बिकॉज हम्म ही, गॉड वांट्स टू यूज मी। हम्म अमेजिंग, अमेजिंग सदानंद जी। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो आपने बताया कि आपके माइंड में जो कंट्रोल है, और जिस तरह से आप 2 घंटे वर्कआउट करते हैं जिम में, मैं सही में 1 घंटा अच्छे से वर्कआउट करूँ ना, 10 10 किलो के डंबल, सिर्फ 10 किलो के डंबल से मेरी से हवा टाइट हो जाती है, कि बाद में फिर मैं दूसरे दिन ऐसे सोचती हूँ कि नहीं यार, आज तो मैं नहीं करूंगी, आज तो मैं थोड़ा सा कम वर्कआउट करूंगी, आज तो थोड़ा सा लाइट लाइट होगा। बट नाउ जैसे आपने बताया कि आप 2 घंटे और वो भी इतने अमेजिंग वेट के साथ वर्कआउट करते हैं, डेफिनेटली इंस्पायर्ड बाय यू, विथ एंड दिस फुल इज, इंटेंसिटी। हाँ। ये आप नहीं आपका कि खुद मैं का,
तो सोशल सोशल मीडिया का मोबाइल अभी सबको ही तो मोबाइल लेके जाते जी। ये नहीं हाँ। कि आप फेसबुक इंटरनेट ये वो सब देखते रहो और ये करते नहीं। वो करने से आपका मन डाइवर्ट होता है। तो फुल इंटेंसिटी आई डू 2 आवर्स ऑफ मोस्टली 2 आवर्स ऑफ वर्कआउट। हाँ। और और दूसरा क्या है ना, ये इससे स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट ये एक हाँ। अनदर प्रोडक्ट, अनदर प्लस फैक्टर। अभी क्या है, लोग ज्यादातर ये जो आप बताया ना कि कुछ दिन करता है बाद में नहीं करता है, तो उनका इच्छा ही नहीं था, लेकिन वो जबरदस्ती इच्छा पैदा किया था जिम जाने का या जिम का मेंबरशिप लेने का। ठीक है ना। हम्म। और वो बस 4-5 दिन में उसका खत्म हो जाता है। वो होने से नहीं चलेगा, क्योंकि देयर इज अनदर कनेक्शन इज ए कॉल न्यूरो मस्कुलर कनेक्शन। आपका नर्वस सिस्टम, आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका साथ कनेक्ट रहता है। आप जब मस्कुलर एक्सरसाइज करते हो ना, इंटेंसिटी, आपका नर्वस सिस्टम आपको वो जो फील गुड हार्मोन देता है ना, फील गुड हार्मोन हम्म। डोपामिन, वो वहां से प्रोड्यूस होके आता है। लेकिन ऐसा ढीला ढाला करो नहीं करो, या अभी जिम के बाद कहाँ जाएंगी किसको मिलेंगी, हम्म। वो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट से क्या होता है, वो कोई भी कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करेगा और वो लॉन्ग जर्नी में नहीं चल पाएगा। करेक्ट। लेकिन इसकी बेनिफिट्स अगर लेना है, पाना है, तो यू हैव टू गो थ्रू दैट पाथ, you हम्म। have to walk into that path to actually experience the joy of it. Ultimately who is the beneficiary? आज अगर आपको बॉडी सही है ना, तो बेनिफिशियरी, मेरे को पेन तो मुझे ही उठाना पड़ेगा, है ना। और मैं ही बेनिफिशियरी हूं ना। मेरे लिए आई आई कैनॉट डू वर्कआउट फॉर यू, बराबर कि नहीं। मैं गाइड कर सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ फॉर्म, लेकिन करना किसको है, इंडिविजुअल। तो ये दैट काइंड ऑफ माइंडसेट इज रिक्वायर्ड टू कीप गोइंग। ओके, कीप गोइंग। डेफिनेटली, डेफिनेटली। और इससे मैंने ये भी देखा है, मतलब जब से मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया था, आई गेस 2 इयर्स अगो, तो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है वो हर एक वर्कआउट के बाद आती है कि हाँ कुछ तो किया है मैंने, खुद के लिए कुछ तो किया अपने शरीर के लिए। और इसी से डिटर्मिनेशन भी मेंटेन होती है, और ना कि सिर्फ इस चीज में, बल्कि रेगुलर वर्कआउट करने की वजह से मेरी पढ़ाई भी इम्प्रूव हुई, मेरा ग्रास्पिंग पावर भी इम्प्रूव हुआ, और मेरा एक्टिविटी लेवल भी इम्प्रूव हुआ कि मैं बहुत प्रोडक्टिव होती हूँ थ्रू आउट द डे इफ आई डू माई वर्कआउट। बट अगर 2-3 दिन नहीं होता है वर्कआउट तो मैं उतनी डाउन हो जाती हूँ। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि आपका सिर्फ 1 घंटा वर्कआउट से या फिर आधे घंटे वर्कआउट आपके दिन भर में क्या प्रभाव पड़ता है? आपका एनर्जी फ्लो थ्रू आउट द डे, हम्म। पॉजिटिव एनर्जी, यू नो पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होते रहता है। और वो पॉजिटिव एनर्जी से आप जिस फील्ड में हो, इफ यू आर इन द क्रिएटिव फील्ड, वो क्रिएटिविटी आपका ऑटोमेटिकली फ्लोरिश करेगा। और एनी काइंड ऑफ फील्ड। तो इसीलिए ये, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर रिलैक्स एंड यू आर सो हैप्पी। योर इनर सेल्फ, आपका जो इनर सेल्फ है ना, इतने आनंदित रहता है, और सो आनंद के कारण इस सारे जो अभी क्रिएटिविटी होता है ना, यू हैव टू हैव दैट इनर जॉय, इनर पीस, इनर हैप्पीनेस। तभी तो आपका बाकी जो भी करते हो उसमें आपको मन लगेगा। हम्म। तो ये सब बाय हम्म। प्रोडक्ट ऑफ वर्कआउट। It is absolutely. I've experienced it and I encourage all our ख्याल community members कि अगर आप कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहे हो, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है आपकी, आप प्लीज खुद से कुछ कीजिए, खुद से थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालिए और थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट कीजिए। स्टार्ट विद हाफ एन आवर एंड यू विल सी द चेंजेस इन यू, सो डेफिनेटली। अच्छा, They will सदान never regret. करेक्ट। They will never regret. विल खाली नेवर पहला, रिग्रेट। एनी जर्नी बिगिन विथ ए फर्स्ट स्टेप। ओके। हम्म। तो वो होपफुली आज की सेशन के बाद जो भी एल्डर्स ये मेरे बातें सुन रहे हैं, तो हम्म। मैं आपको इस फिटनेस
फील्ड के लिए आमंत्रण करना चाहता हूँ। आप जहाँ पे भी है, हिंदुस्तान की जिस कोने में भी है, हम्म। आप प्लीज प्लीज फिजिकल एक्टिविटी अगर अभी तक नहीं किया है, शुरू कीजिए। करेक्ट। आपको उससे बहुत मुझे लगता है आनंद मिलेगा। कॉन्फिडेंस भी बहुत बिल्डअप हो जाता है। मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ा था पहले, आई वाज वेरी इंट्रोवर्टेड, पर उसके बाद से मेरा कॉन्फिडेंस भी काफी अच्छा बढ़ा। तो क्या वो भी होता है आपके साथ यस, भी? सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये एक अनदर बाय प्रोडक्ट। आपको दिस कॉन्फिडेंस इज द अनदर की, ओके, फॉर गेटिंग सक्सेस इन एनी फील्ड। आपको किसी के सामने कुछ बोलने के लिए, किसी को मिलने के लिए, इवन आप मान लीजिए कहीं इंटरव्यू करने गया है, इंटरव्यू के लिए गया है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग, और आपको इतना है कि कोई भी टॉपिक के ऊपर आप बोल सकते हो, ऐसा। तो कॉन्फिडेंस तो होता ही होता करेक्ट। थैंक यू। अच्छा, है। अभी हमने वर्कआउट की बहुत बात कर ली, मतलब किस तरह से वर्कआउट करना चाहिए, हर रोज करना चाहिए, एटलीस्ट आधे घंटे के लिए करना चाहिए। पर इससे ना थोड़ा सा इंजरी भी होता है। इंजरी नहीं कह सकते, पर मसल जो होता है वो जब बिल्डिंग के प्रोसेस में होते हैं वो थोड़े टीयर हो जाते हैं, उनको थोड़े से परेशानी होती है। ये हमें कैसे दिखता है कि हम वर्कआउट के बाद हमारा मसल पेन होता है, हमारे पैर दुखने लगते हैं, पैर दुखते हैं, हाथों के मसल। तो इस रिकवरी के लिए क्या करें? आप खुद क्या करते हैं मसल के जो ये होता है, पेन होता है, उसके रिकवरी के लिए? मैं मोस्टली रेस्ट देता हूँ। और अगर रेस्ट। मान लीजिए आपका लोअर बॉडी, सपोज लेग वर्कआउट करते टाइम कुछ नी में इंजरी हुआ, तो फॉर कपल ऑफ डेज मैं लेग वर्कआउट नहीं करूँगा और अपर बॉडी वर्कआउट करता हूँ। हम्म। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा सेंसिबल होना बहुत जरूरी है जिम में। आपको इंजरी अवॉइड करने के लिए मोस्टली बहुत सारे वार्मिंग अप नहीं करते हैं, वार्म अप, कूल डाउन, ये दोनों जो है जिम में आने से करने से पहले, जिमिंग वर्कआउट आरंभ करने से पहले वार्म अप करना सही है। और अगर जो वार्म अप नहीं करते, सीधा ही आके हैवी वेट उठा लेते, तो इंजरी होता है। तो उसके हाँ। लिए आपको रेस्ट देना जरूरी है। ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा इंजरी है, तो फिर आपको डेफिनेटली ऑर्थोपेडिक, अगर जॉइंट का इशू है, तो ऑर्थोपेडिक से कांटेक्ट करना चाहिए। ठीक है। और कोई कोई साइकोसोमेटिक भी होता है। अच्छा। आप इमेजिनरी पेन, कभी कभी ये बहुत रेयर होता होगा। जो बोलते हैं ना, जो कामचोर होता है ना, वो कुछ ना कुछ ढूंढ के निकालता है बहाना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन रेस्ट रेस्ट है इम्पोर्टेंट है। रेस्ट इम्पोर्टेंट है। करेक्ट, करेक्ट। मतलब मुझे लगता है, मतलब मैं ये फॉलो करती हूँ कि मैं हफ्ते में से एक दिन एब्सोल्युटली रेस्ट करती हूँ। मैं ना वर्कआउट करूंगी ना वॉक करूंगी। यूजुअली मैं वॉकिंग और वर्कआउट दोनों करती हूँ। तो क्या हफ्ते में से एक दिन ऐसे एब्सोल्यूट रेस्ट काफी है, या हाँ, अभी हमारे एल्डर्स को ज्यादा रेस्ट लेना चाहिए? एल्डर्स को तो मैं बोलूंगा इवनिंग नैप इज ए वेरी गुड, माय एक्सपीरियंस। आप अगर 4 to 5 या 5 to 6 1 आवर नैप पर आफ्टरनून नैप ले सकते हैं, ओ। बहुत अच्छा होता है वो। ओके। बहुत अच्छा है ये। रिजुवेनेट हो जाता है सेल्फ। यू कैन रिजुवेनेट टोटली, आपका एनर्जी लेवल टोटली फ्रेश हो जाता है। तो इवनिंग नैप, दैट इज आफ्टरनून नैप, 4 to 5 या 5 to 6, तो करना सही है यूजुअली ऐसे कहते हैं ना एल्डर्स कि के लिए। आफ्टरनून, हाँ, यूजुअली ऐसे कहते हैं कि आफ्टरनून नैप अच्छा नहीं होता है, बट एज यू सेड, इफ यू आर डूइंग वर्कआउट एंड इफ यू आर एन एल्डरली, तो ज्यादा अच्छा होता है आफ्टरनून नैप लेना। इट इज बेनिफिशियल। बहुत बेनिफिशियल, वाह, आई डिडंट नो दिस। बहुत बेनिफिशियल होता है। आप 1 घंटा सो के देखो आफ्टरनून को। आप अगर इफ देयर इज नथिंग एल्स टू डू, टाइम परमिट, आप आप देखो कि कैसा महसूस होता है, क्योंकि टोटली रिजुवेनेट हो जाता है आपका पूरा सुपर बॉडी। सराहना जी। वाह। ओके, लास्ट क्वेश्चन। ये अभी बहुत जनरल क्वेश्चन है कि जनरल टिप्स आप क्या देना चाहेंगे फॉर टू आवर एल्डर्स, आपके एक्सपीरियंसेस से, कि अभी वो समझ लीजिए अभी वर्कआउट शुरू करने वाले हैं, अभी वो एक्सपायर हो गए हैं, जैसे कि मैं हो गई हूँ। और हम सभी मिलके थोड़े थोड़े से वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, थोड़ा वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो
जनरल टिप्स क्या होने चाहिए, जनरल चीजें क्या मेंटेन करनी चाहिए एक एल्डरली पर्सन में जब वो वर्कआउट कर रहे हैं? एटलीस्ट ट्राई से वीक 3 days इन ए वीक आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिए। और अगर आपको मेडिटेशन करने का, मेडिटेशन तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा, योगा एंड मेडिटेशन, पर्टिकुलरली एल्डरली पर्सन। और आप कुर्सी में बैठ के भी मेडिटेशन कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको नीचे में। तो एक वो हो गया, प्लस थ्रू द डे आपको अ, गुनगुना पानी पीना चाहिए। ठीक है। बाकी प्रेयर एंड मेडिटेशन ऑलवेज हेल्प्स टू गेट यू बीइंग पॉजिटिव। बहुत ज्यादा सोचने का नहीं है, स्ट्रेस को बहुत ज्यादा, अभी कौन नहीं है कि स्ट्रेस नहीं आता है, सबका स्ट्रेस है, लेकिन स्ट्रेस को हावी होने को नहीं देने का है। और ये ऑटोमेटिकली आपका पास वो इनर पावर आएगा अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और मेडिटेशन करते वाह। गुनगुना पानी, हर रोज थोड़ा सा वर्कआउट, आफ्टरनून नैप, गुड डाइट, लेस कार्बोहाइड्रेट्स, मोर प्रोटीन्स एंड मेडिटेशन। तो इतने सारे टिप्स हमने आज आपसे ले लिए हैं हैं। सिक्स टू सदानंद सेवन जी। आवर्स स्लीप, 6 to 7 hours स्लीप। करेक्ट करेक्ट। थैंक यू सदानंद जी। और मुझे लगता है कि अगर आप इतने थक जाते होंगे दिन भर में और इतना अच्छा अगर आपका डाइट होता होगा तो आपको नींद की प्रॉब्लम जो भी है वो भी सॉल्व हो जाते होंगे, यस नींद यस। नहीं आती है तो। आपने कभी इस प्रॉब्लम को फेस किया है? नींद नींद। तो मेरा बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं इवन दो मैं लेट सोने से भी आई यूज टू गेट अप एट 5 o'clock। बाप रे। 5 o'clock, हाँ 5 o'clock। तो और इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। अभी मान लीजिए आपको अगर 7 hours आपने नींद मिला तो ठीक है, 6 hours भी ठीक है, 5 hours भी ठीक है। और कुछ बातें जो है ना, ऐसा नहीं सोचते रहना चाहिए दिन भर, अरे मेरे को आज नींद कम हुआ, ये हुआ। तो वो एक बीमारी बन जाता है, क्यों नींद कम हुआ, क्या है। तो बहुत ज्यादा अपना एगोनी, पेन एंड एगोनी के बारे में बहुत ज्यादा हैबिट नहीं बनाना चाहिए। इसको बोलो उसको बोलो, ये सब इससे क्या है ना, खुद का स्ट्रेस ज्यादा पैदा होता है। तो आपका जो पॉजिटिव बीइंग, आप विथ ऑल दिस गुड एक्टिविटीज, वो एक्सरसाइज एंड ऑल डाइट एंड, जो आपका पॉजिटिव बीइंग आप बना रहे हो, तो फिर वो कहीं ना कहीं आप डी फोकस हो जाने का चांसेस है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, बहुत ज्यादा सोचना सचना नहीं है। जैसे प्रभु ने आपको दिया है समय इस दुनिया में, आप हम सबका समय बहुत लिमिटेड है, बस इसको अच्छे से जीना है। वाह, कितनी बड़ी बात कह दी आपने। और ये जो आपने कहा कि हमें सोचना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है कि आज मुझे मेरे डाइट के अकॉर्डिंग खाना नहीं मिला, आज मुझे वो नहीं मिला, आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई, आज ऐसे नहीं हुआ। क्योंकि जितना ज्यादा हम कंप्लेन करेंगे उतना ज्यादा हम स्ट्रेस लेंगे, जो कि हमारे शरीर के लिए अगेन हानिकारक है। और जैसे आपने कहा कि जितना भगवान ने दिया है, जितना हो रहा है, जितना चल रहा है उतना बढ़िया है, उसी में इम्प्रूव करो, उसी में खुद को मेंटेन करो और उसी में खुश रहो। तो ये एक सही में अमेजिंग बात आपने कह दी, क्योंकि हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं फिटनेस से भी, हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं छोटी छोटी बातों से भी, जो अगेन स्ट्रेस पैदा करती है और फिर उसके लिए हम चीजें करते हैं कि स्ट्रेस ना हो आगे मुझे। सो अमेजिंग कोई अमेजिंग। कोई चीजों में ऑब्सेस होना ही नहीं चाहिए। ये दिस इज कॉल्ड एनलाइटनमेंट, एनलाइटन। ओके। सबको हर चीज नहीं मिलता है, सबको ड्रीम फिजिक नहीं मिलता है, हर कोई ये करना रही, लेकिन जो हो सकता है दैट इज माइंड, जो नहीं है मेरा, वो मेरा कभी था ही नहीं। वो एनलाइटन हो जाना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप पल पल में इस दुनिया में आप ऐसे ही स्ट्रेस लेते रहो। तो मेरा सजेशन यही है कि जस्ट एंजॉय योर जर्नी ऑफ दिस लाइफ ऑन दिस प्लेनेट कॉल्ड अर्थ। Amazing, amazing. Enjoy your journey in this lifetime.
वाओ, दिस इज अ जर्नी व्हिच विल कंटिन्यू, दिस इज जस्ट स्टॉप। मैंने ये सुना था, मे बी ये काफी स्पिरिचुअल हो गया, पर मैंने ये सुना था कि हमारी जो आत्मा है उसके लिए ये एक लाइफ टाइम जो अभी हमारा है वो सिर्फ एक स्टॉप है, जैसे बस स्टॉप होता है, स्टॉप होके फिर हम वापस से आगे जाते हैं, वैसे सिर्फ एक ये स्टॉप है, और वी नीड टू लिव फुल्ली इन दिस लाइफ टाइम, इन दिस स्टॉप ऑफ आवर सोल। यस। इसलिए मैं कल भेजा था ना आपको, कर्मा सेज that don't open that window which hurt you, because even the better view window also can be not necessary, you know. Amazing image and amazing thought it was. Sadanand, thank you so much for sharing your fitness secrets. फिजिकली भी आपने काफी ज्यादा आज हमें बताया कि फिजिकली क्या क्या हमें करना चाहिए, कैसे हमें खुद की हेल्थ मेंटेन करनी चाहिए, और जो एक स्पिरिचुअल एंगल आप इस सेशन में लेके आए हैं वो तो मतलब चार चांद लगा के हमारे फिटनेस की जर्नी पे, बिकॉज फिटनेस इज नॉट ओनली हाउ यू लुक एंड हाउ मच मसल्स यू हैव एंड एवरीथिंग, it is also how spiritual you are, it is also how stress free you are, and it is also how happy you are from within. And you are everything. You are physically fit, mentally fit, spiritually fit. You are definitely dreaming to achieve what you have right. Super. Thank you. Okay. अगर हमारे मेंबर्स को कुछ पूछना है हमारे सदानंद जी से तो हाँ, आप पूछ सकते हैं अगर हाँ, कोई पूछना ओके। चाहे। Ramesh Girish and Rajesh ji we have as of now. So we'll go to Ramesh Girish ji. Yes, Ramesh. Yes, yes. Yogini, I'll add to this. I'm a bit older to Sadanand. I'm entering to 80 next month. Wow. I'm entering to 80. And do you know, I played cricket up to 55 years. I was Very good. all-rounder, and mostly I was fond of swimming. मैं स्विमिंग हर रोज 1 घंटा करता था। अभी 1 साल से मेरा बंद है ड्यू टू दैट कोरोना वायरस। तो वो मैं अंडर वाटर भी शीर्षासन करता था। शीर्षासन फॉर 1 minute. Oh my My God. head was under the water and my legs was on the top of the water. Very good. And do you believe I can stay without breathing underwater for 1 minute? Oh my God. I cannot believe this. Wow. That was Very the good. beauty of my health. And what I'll tell you more, for your information, I have never been admitted to any hospital, even for an hour, till now. I don't know about future. I don't know about my future. Oh. I'm 80. I'm 80 now. Very good. Keep going, sir. सही में कि रमेश गिरी इज डेफिनेटली ग्रोइंग हेल्थियर एंड हेल्थियर, एंड सदानंद जी एज वेल, एंड हमारे बाकी के मेंबर्स भी ऑफ कोर्स। ओके, विल गो टू राजेश जी। यस, राजेश जी। राजन जी का मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ, जो भी उन्होंने टिप्स दी हम सबको फॉलो करनी चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मॉर्निंग में उठो और हेडेक एंड आईज में पेन हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मैं अच्छे योगिनी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? यस, राजेश जी, आपको सुबह उठने के बाद आंखों में पेन होता है, और हेड में भी पेन होता हैंड्स में पेन होता है, है, हेड हेड हाँ, हेड उसके में लिए पेन होता है, हेड में पेन होता है, सुबह उठने के बाद उनको हेड में तो पेन होता है। कुछ टिप्स हाँ, आप अगर शेयर करना चाहें तो। एक्चुअली मेरे ख्याल से नींद कम होने के कारण होता होगा। स्लीप हम्म। स्लीप वाज नॉट ए क्वालिटी स्लीप। उसके लिए आपको मैं तो आपको बताऊंगा कि आपको खुद को शायद कुछ स्ट्रेस लेके सोए होंगी रात को सोते टाइम। हम्म। और आपकी बैक ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में होगा। तो एक्चुअली कोई पिन पॉइंट नहीं कर सकता। इट कुड बी ए मेडिकल रीजन, इट कुड बी काइंड ऑफ ए मेंटल रीजन। तो उसके लिए आप अगर मेडिटेशन करो, अ, मेरे ख्याल से आप अगर सुबह उठ ही जाते हो तो आप कुछ प्राणायाम कर सकते हो। प्राणायाम इज वेरी गुड एक्चुअली। योगा मैं बोलना भूल गया, योगा के साथ प्राणायाम बहुत अच्छा है। आप अगर प्राणायाम करो, सिंपल अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आप मेडिटेशन कर सकते हो। तो होपफुली मेरे ख्याल से सर आपका ये हेडेक जो होता है निकल जाएगा। और सोते टाइम इसीलिए कभी कभी हम लोग अननोइंगली कुछ ना कुछ
अपना सब कॉन्शियस में चले जाता है कुछ थॉट्स, वो भी ऐसा हो सकता है। इसके लिए कोई फिजिकल एक्सरसाइज तो मैं नहीं सजेस्ट कर पाऊंगा, लेकिन खाली इतना ही कहूँगा कि सोते टाइम स्ट्रेस ना लीजिए, और सुबह में आप कुछ प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन कीजिए, तो होपफुली निकल जाएगा। तो स्ट्रेस फ्री एंड कंप्लीट स्लीप इज द की, और उसके बाद मेडिटेशन और थोड़ा सा प्राणायाम से जो जनरल हेडेक है वो सॉल्व हो सकता है, जो स्ट्रेस की वजह से होता है। पर अगर आपको ये हेडेक परसिस्टेंट है, तो जैसे सदानंद जी ने कहा कि मेडिकल रीजन भी हो सकता है, तो एक बार डॉक्टर को भी दिखा के आइए, ताकि आपको एक क्लियर व्यू मिले और आप सारे वेज को फॉलो कर सकें। ओके, विल गो टू नीलम जी। यस नीलम जी। यस, आज का सेशन तो मैं जितनी तारीफ उतनी है। आनंद जी ने तो वंडरफुल बनाने के ऐसे ऐसे टिप्स दिए, और में जैसे मेडिटेशन, वर्कआउट, फिर डाइट का, और जो इन्होंने सबसे बड़ी चीज ये बताई कि चाहे हमारे पास कितनी भी अच्छी हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी और लॉन्ग लाइफ मिल जाए, लेकिन अगर हमारे पास सेटिस्फेक्शन नहीं है ना, तो वो सब कुछ बेकार है। तो कहते हैं ना, जब आए संतोष सब धन धूलि समान। तो हमारे पास जो है ना, सबसे वंडरफुल लाइफ बनाने के लिए सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। या तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सदानंद जी का। आज उन्होंने इतने अच्छे अच्छे टिप्स दिए कि मैं क्या बताऊं। मैं बहुत अगेन आपका बहुत थैंक्स करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। लवली, थैंक यू नीलम जी। आई एम ग्लैड आपको ये सेशन पसंद आया। यस अस्मिता जी। हाँ, नमस्ते। आज का सेशन बहुत अच्छा था, और हमको बहुत सारी बातें हम तो करते हैं, लेकिन माइंडफुलनेस तो इसमें जो अभी सर ने जो बताया तो वो बहुत अच्छा है। रमेश गिरी सर ने जितना खुद को मेंटेन किया है वो तो सही है। बहुत सारे लोग ऐसे दिखते हैं, लेकिन सदानंद सर ने जो बाहर इतने जो वोन किए हैं प्राइजेस हो, तो लोगों का अप्रिसिएशन उनको मिला है, तो वो बहुत ये है। और उन्होंने भी जो स्पिरिचुअल जो बातें कही है ना, तो वो बहुत अच्छी लगी मुझे कि अपनी जिंदगी में स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है। एक मजे की बात मैं ऐसा कहूंगी कि मेरे बड़े लड़के के यहाँ डंबल है 2 किलो का। और जब हम छोटे बच्चे उनके यहाँ कोई भी जाता है, तो बच्चे तो खूब बहुत सारे खेलते हैं, तो वो उनके सामने रखते हैं वो छोटा डंबल 2 किलो का, और वो जो बच्चा वो डंबल उठाता है उसके लिए तालियां बजाते हैं तो एक वो ये रहता है उनके यहाँ कि वो डंबल उठाता है, ये नहीं वो बच्चा खोलता भी बच्चा जाने के बाद तो हम वो लेते हैं। तो हम भी थोड़ा बहुत करते हैं, आधा पौना घंटा जितनी हमारी कैपेसिटी है वैसे। मुझे सदानंद सर से ये पूछना है कि वो क्या स्पेशल क्वालिटी है आप जैसा, आपने जो इतना पूरे वर्ल्ड में अपना देश का नाम कमाया है, कुछ तो भी बेसिक आपकी अच्छी ज्यादा क्वालिटी होगी, हम सामान्य लोगों से आपकी ज्यादा क्वालिटी होगी, तो क्या होता होगा? ये मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ कि कोई भी आपकी बराबरी ना करे कि हम भी ऐसा करते हैं वैसा नहीं, कुछ तो खास क्वालिटी होगी। माइंड तो है आपके पास, वो ट्रेनिंग है, सब है, लेकिन कुछ तो भी बेसिक जन्म से ही जब हम बच्चा, जब हमारे अब हमारे सामने बच्चे हैं, हम अब सीनियर हो गए, तो जो बच्चा जन्म लेता है तभी से कुछ तो भी स्पेशल क्वालिटी होगी उसमें, तो वो क्या होगी ये मुझे पूछना था। मेरा शायद डीएनए में लिखा है ये। जेनेटिक्स जेनेटिक्स पॉसिबली जेनेटिक्स। जेनेटिक्स हो सकता है। तो एक्चुअली मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, और नॉर्थ ईस्ट की जो जेनेटिक्स है वो आप देखे होंगे। मणिपुर से भी बहुत सारे बॉडी बिल्डर एथलेट्स निकलते हैं। हमारा अपना मेरा रिश्तेदार आसाम से भी अभी लवलीना बर्गो है एशिया में बॉक्सिंग में वो। तो मैं उसी कौम का बिलोंग करता हूँ, वही कम्युनिटी का। अ, एक फैक्टर अगर ये फिजिकल एक्टिविटी में, बॉडी बिल्डिंग में जेनेटिक्स प्ले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपका आप इफ यू आर ब्लेस्ड विथ ए काइंड ऑफ जेनेटिक्स, बाकी चीज तो वर्कआउट से आएगा। ये नहीं कि खाली जेनेटिक्स है और अपने आप होगा, नहीं। उसको आपको वो आपका फाउंडेशन हो गया, लेकिन उसके ऊपर आपको बिल्डअप करना पड़ेगा, जैसे हर कोई करते हैं। क्वालिटी ट्रेनिंग, डाइट, ये सारे नॉलेज लेके, और
मैंने लाइफ में कभी स्टेरॉइड नहीं लिया। स्टेरॉइड आपको मालूम होगा, बहुत सारे बॉडी बिल्डर लेते हैं। और ये स्टेरॉइड क्या है? एक आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, सिंथेटिक। हमारा शरीर प्रोड्यूस करता है, हमारा जो शरीर खुद ही टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। और अगर आप योगा करोगे, शीर्षासन करते हैं जो लोग, आपका जो एंडोक्राइन ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड, वो हार्मोन सीक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो मैं हमेशा नेचुरल सिस्टम को बिलीव करके आया हूँ। अभी मेरे साथ में बहुत सारे बॉडी बिल्डर, मैं महाराष्ट्र के मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डर, यंग, बहुत यंग, अभी कोई 35, कोई 45, वो लोग का डेथ हो गया बिकॉज उन लोग ने अपना शरीर की एब्यूज किया था स्टेरॉइड लेके। तो इसीलिए एक फैक्टर ये होगा कि स्टेरॉइड मैंने कभी लाइफ में इतना कंपटीशन किया लेकिन मैंने ट्रस्ट नहीं किया, और मैं हमेशा नेचुरल रहा। और एक हो सकता है मेरा वो नॉर्थ ईस्टर्न जेनेटिक्स। Lovely. Perfect. Miraji, so yes, hard work and determination, three Ds of सदानंद जी आज हमें पता चले हैं। डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और क्या था सदानंद जी? डिजायर, फर्स्ट डिजायर। डिजायर होना जरूरी है कि मुझे ऐसा होना चाहिए, मेरे को योगिनी जैसा होना चाहिए, मुझे योगिनी जैसा बनना चाहिए, 105 से 75 आना चाहिए, वो डिजायर हो गया। अभी ये कैसे हुआ तो योगिनी बताए कि मैंने क्या क्या किया। तो उस रूटीन को फॉलो करना, डिसिप्लिन फॉलो करने से, और जब डिसिप्लिन से करके जब अचीव करेगा, मजा आनंद आने लगेगा, तो फिर वो डेडिकेटेडली फॉलो हो ही जाता है। तो Correct. डिजायर, डिसिप्लिन, डेडिकेशन। Desire, discipline, dedication, absolutely in every field, not even just fitness, but in every field. Even if you want to become spiritual, अगर हमें meditation भी start करना है तो भी हमें ये 3 Ds follow कर सकते हैं। जो भी हमें जिंदगी में करना है, मुझे लगता है these 3 Ds are absolutely important. मैं इसको लिख के रख दिया है मैंने सदानंद जी। So thank you so much for this wonderful session again. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सदानंद जी, बहुत बहुत सारी नॉलेज मिली आज अबाउट आवर फिजिकल हेल्थ, mental health, even spiritual health, and even how to live a life, and to get that realization that life is small and we have a little time to enjoy this lifetime and to make better things out of it. So thank you so much Sanaji for this amazing session again. ओके, अभी हम करते हैं कंक्लूड। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप यू एंजॉय टुडे सेशन। ऐसे ही अमेजिंग कॉन्वर्सेशन सेशंस के साथ हम वापस आएंगे, और हमारे जितने भी ख्याल के मेंबर्स हैं जिनके पास एक्सेप्शनल टैलेंट है, एक्सेप्शनल फील्ड में उन्होंने काम किया है, उनकी सारी बातें सुनेंगे और उनसे हम कुछ ना कुछ हमेशा हर एक कॉन्वर्सेशन से लेके ही जाएंगे। थैंक यू सो मच सदानंद जी अगेन फॉर कमिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म एंड शेयरिंग योर सीक्रेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी के लिए हम चलते हैं और हम मिलेंगे 3 बजे हमारे अंताक्षरी सेशन के साथ। ओके एवरीवन, बाय बाय एंड हैव अ हैप्पी डे अहेड। Please like, subscribe and press the bell icon to get notified for new videos.